ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 11۔ یہ ذوالفقار علی شاہ کا گھرانہ تھا۔ ذوالفقار شاہ اپنے آبائی گاؤں، جن کے وہ سردار تھے، وہاں رہتے تھے۔ بڑھتی عمر کے اور کچھ ذاتی وجوہات کے ساتھ انہوں نے یہ سرداری اپنے دور کے بھائی کے بیٹے کو دے دی اور خود اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کو لے کر ملتان، جو کہ ولیوں کا شہر بھی مانا جاتا ہے، وہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ ان کے بیٹوں کا کاروبار تو پہلے ہی شہر میں تھا اور آج ذوالفقار علی شاہ کا ایک جانا مانا نام تھا۔ ان کے بیٹے حسن شاہ اور حسان شاہ جانے مانے بزنس ٹائکون تھے۔ ان کا گھرانہ شہر کے معزز گھرانوں میں سے ایک تھا۔ ذوالفقار شاہ بہت رحم دل انسان تھے، لیکن 20 سال پہلے جو ہوا اس کے بعد وہ انتہا کے سخت دل ہو گئے تھے۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے۔ ان کی شادی کے بعد کافی سال ان کے دونوں بیٹوں میں سے کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں ہوئی، لیکن شادی کے سالوں بعد انہیں بڑے بیٹے کو بھی بیٹی ہوئی، جس کا نام رمل تھا، اور اس سے 5 سال چھوٹی مہرماں شاہ، جو ان کے چھوٹے بیٹے کی بیٹی تھی۔ ان کا رویہ سب کے ساتھ اچھا تھا، لیکن ویسا نہیں جیسا 20 سال پہلے ہوتا تھا۔ لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ پھر بھی وہ جتنا ہو سکے نرم رویہ ہی رکھتے تھے۔ لیکن مہر کہنے کو تو وہ سارے گھر کی لاڈلی تھی، لیکن ذوالفقار شاہ کو مہرماں شاہ سے نہ جانے کیسی نفرت تھی۔ وہ چاہ کر بھی کبھی اس کے ساتھ پیار سے بات نہ کر سکے۔ انہیں بیٹی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور رب کی رضا میں راضی تھے۔ رمل کو بہت پیار کرتے تھے، لیکن مہر سے وہ چاہ کر بھی پیار نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا چہرہ انہیں کسی کی یاد دلاتا تھا جس سے وہ سخت نفرت کرتے تھے۔ مہر بہت شرارتی تھی۔ دکھنے میں وہ بلا کی معصوم تھی، لیکن ہر وقت لوگوں کی ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ وہ چاہے کالج ہو، گھر ہو، دوستوں میں ہو یا پڑوسیوں میں، سبھی اس سے تنگ تھے۔ آئے روز وہ کوئی نہ کوئی شرارت کرتی، روز اس کا کوئی نہ کوئی کارنامہ آقا جان کو جب پتہ چلتا تو اسے سخت سزا دیتے، لیکن وہ بھی انتہا کی ڈیٹ تھی۔ سوری کر کے اگلے دن پھر سے کچھ کر دیتی تھی، اور آج بھی اس نے کوئی کارنامہ کیا تھا جس کی خبر ذوالفقار شاہ کو ہو گئی تھی۔ اس لیے اب وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ باقی سب خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بابا اور بڑے بابا بھی آ چکے تھے۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ پیپرز اس کے آگے کرتے بولے۔ پیپر ہیں آگا جان، وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ وہ ہمیں بھی دکھ رہا ہے، اس پر کیا بنایا ہے؟ آئے دن آپ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں، آج تو حد کر دی۔ یہی سکھایا ہم نے آپ کو کہ اپنے استاد کے ساتھ یہ سب کرو، ان کا مذاق بناؤ۔ ہاں، اب جواب دو، چپ کیوں ہو؟ آگا جان، ہم نے بس مذاق کیا تھا، وہ منمنائی۔ ٹیچرز کے ساتھ بھی کوئی مذاق ہوتے ہیں، اور وہ بھی اتنا گھٹیا مذاق؟ بابا جان، کیا کیا ہے اس نے؟ حسن صاحب سے اپنی لاڈلی کا اداس چہرہ دیکھا نہ گیا تو پوچھ بیٹھے۔ پوچھو اپنی لاڈلی سے کیا کیا ہے؟ یہی تربیت کی ہے تم نے اس کی کہ لوگ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں تمہیں اندازہ ہے کتنی شرمندگی ہوئی ہے ہمیں اپنے دوست کے سامنے؟ انہوں نے کالج میں آئے نئی ٹیچر سے نہ صرف اپنا سارا کام کروایا ہے، بلکہ ان کی ایسی تصاویر بنا کر بورڈز پر لگائی ہیں، اور تو اور ان سے اپنے کھانے کا بل بھی بھروایا ہے۔ انہوں نے وہ پیپر سامنے کیا جس میں عجیب عجیب سے کارٹون بنے ہوئے تھے۔ حسن صاحب کو دیکھتے ہنسی تو بہت آئی، لیکن آگا جان کے سامنے ضبط کر کے، وہ تو ہمارے دوست کا پوتا تھا جو اسے پہچان گیا تھا، تو اس نے ہمیں اس کے کارنامے بتا دیے۔ یہی سب کرنے جاتی ہیں کالج میں آپ؟ لیکن آگا جان، ہمیں لگا وہ اسٹوڈنٹ ہے، اس لیے ہم تو بس اس کی رینکنگ کر رہے تھے۔ وہ شرمندہ ہوتے بولی۔ انہیں باقی میں بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ ٹیچر ہے۔ ہم کالج آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ سب کرنے کے لیے نہیں۔ اگر شرارتیں ہی کرنی ہے تو گھر بیٹھو، ہمارا نام بدنام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بابا جان، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میں بات کروں گا مہر سے۔ حسن صاحب جلدی سے بولے۔ بابا جان، حسن ٹھیک کہہ رہا، آپ جائیں آرام کریں، بچی ہے، میں سمجھا دوں گا۔ اس عمر میں بچے ایسے ہی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، آپ پلیز چلیے۔ وہ دونوں انہیں کسی طرح وہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ مہر کو توقع نہیں تھی کہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ انہوں نے تو بس نئے اسٹوڈنٹس کی ریگنگ کی تھی۔ وہ نیو ٹیچر ینگ تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں چلا، لیکن بعد میں اس کے دوست اور وہ ان سے سوری کرائے تھے۔ اسے اس ٹیچر پہ انتہا کا غصہ آیا۔ جب وہ سوری کر چکے تھے تو کیا ضرورت تھی اتنی چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنانے کی؟ وہ شرارتیں کرتی تھی، لیکن اتنی کہ کوئی ہرٹ نہ ہو۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی واپس سکیلتی کسی کو بھی دیکھے بغیر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ عالیہ بیگم نے عائشہ کو سنبھالا۔ عائشہ، پریشان مت ہو، ہماری مہر سمجھدار ہے، وہ اتنی چھوٹی باتوں کو دل پر نہیں لیتی۔ رمل ان کے لیے پانی لینے چلے گی۔ بھابھی، آپ نے دیکھا نا بابا جان کیسے اسے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ مانا کہ وہ شرارتی ہے، لیکن وہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتی نا۔ بابا جان کسی اور کی نفرت میں اسے کیوں ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں؟ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں مہر کا کیا قصور تھا بھابھی؟ وہ معصوم تو کچھ جانتے بھی نہیں۔ بابا جان کیوں اپنی نفرت کی ضد میں میری بچی کی معصومیت ختم کر رہے ہیں؟ میں بتا رہی ہوں بھابھی، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب مہر بھی اس کی طرح ہم سب سے دور ہو جائے گی۔ عالیہ بیگم نے دہل کر انہیں دیکھا۔
عائشہ کیسی باتیں کری ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا اس کا نام لینا اس گھر میں منع ہے، اور ہماری مہر کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سب جان چھڑکتے ہیں اس پر، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، عالیہ نے کہا تو عائشہ نے طنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ بھی لاڈلی تھی ہم سب کی، 20 سال ہو گئے، آغا جان اب تک اپنا دل اس کی طرف سے نرم نہیں کر سکے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا وجود بھی اب تو خاک ہو چکا ہے۔ ماما، چھوٹی ماما، آپ دونوں پلیز یہ باتیں چھوڑیے، مہر کو دیکھتے ہیں ہم۔ مہر کو میں دیکھتا ہوں، آپ لوگ ناشتہ لگائیے۔ حسن صاحب پیچھے سے آتے بولے۔ وہ اس کے کمرے میں آئے تو وہ کمرے کے ساتھ بھی چھوٹی سی آرٹ گیلری میں تھی۔ اسے پینٹنگ اور اسکیچنگ کا بہت شوق تھا، اس لیے حسن صاحب نے اس کے روم میں یہ سب رکھوا دیا تھا۔ وہ اندر آئے تو وہ مہارت سے کینوس پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ مسکرائے، وہ غصے میں، خوشی میں، غم میں یہی کرتی تھی۔ ماضی کی ایک یاد نے ان کے دل پر بوجھ بڑھا دیا کہ وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ مہر ہو بہو ان کی کاپی تھی، نہ صرف شکل سے بلکہ ہر عادت، ہر کام میں بھی۔ آنکھوں میں نمی صاف کرتی وہ اس کی طرف بڑھے۔ بابا کی گڑیا اداس ہے؟ وہ بولے تو اس کا ہاتھ رکا، پیچھے مڑ کر انہیں دیکھتی وہ اداسی سے مسکرا دی۔ نہیں تو پھر اوپر کیوں آ گئی؟ نیچے سب ناشتے پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مہر نے ان کی طرف دیکھا۔ بابا ہمیں بھوک نہیں تھی۔ وہ پھر سے اپنے کام میں مگن ہوگی۔ بیٹا تھوڑا سا ناشتہ ہی کر لو، ایسے صبح صبح خالی پیٹ کام نہیں کرتے۔ بابا ہمیں ذرا بھی بھوک نہیں، ہوتی تو ہم کھا لیتے، سچی۔ وہ ان کی طرف مڑ کر بولی، آپ ناشتہ کر لیں، جب ہمیں بھوک لگے گی ہم کر لیں گے، پرومس۔ وہ معصومیت سے بولے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے اب کچھ بھی ہو جائے ان کی لاڈلی اپنی مرضی سے ہی کھانا کھائے گی۔ وہ کیسے بھول گئے، یہ عادت بھی تو اس کی جیسے ہی تھی، کچھ بھی ہو سب سے پہلے کھانا چھوڑنا۔ ٹھیک ہے بیٹے، لیکن کچھ کھا لینا ورنہ بابا پریشان رہیں گے۔ جی بابا، وہ سر ہلا گئی۔ بابا، حسن صاحب کو پیچھے سے پکارتے وہ مڑی، ہمیں انو کی طرف چھوڑ دیں گے، آج ہم لوگ گروپ اسٹڈی کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹے، آپ ریڈی ہو جاؤ، میں ناشتے کے بعد آپ کو ڈراپ کر دوں گا، اوکے؟ وہ برش رکھتی تیار ہونے چلے گی۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ نیچے آئی، جانتی تھی کہ آغا جان ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں جا چکے ہوں گے۔ اسے نیچے آتے دیکھ ماما اس کی طرف پڑی۔ مہر بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ہم جا رہے ہیں ماما، ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو عائشہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ مہر میرا بچہ ایسا نہیں کہتے، آغا جان نے دل سے تھوڑی آپ کو ڈانٹا ہے، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑے ہیں، ان کی باتوں کو برا نہیں مناتے۔ نہیں ماما، اب بس بہت ہو گیا، میں اور برداشت نہیں کروں گی، میں جا رہی ہوں انو کے گھر گروپ سٹڈی کے لیے۔ وہ لب دبا کر بولی۔ مہر میرا بچہ، لیکن وہ رکی۔ گروپ سٹڈی؟ عائشہ بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور اس کی شرارت کو سمجھتے گہرا سانس لیا، جبکہ مہر اب کھل کر ہنس دی۔ او میری بھولی سی ماما، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ ویسے بھی مہر ماشاء اتنی چھوٹی باتوں کا اثر نہیں لیتی۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی تو انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر پیار کیا۔ آپ نے میرے لیے پریشان مت ہوا کرے، مجھے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ میں مہر ہوں، ربدی مہر، جو اس نے آپ سب پر کی ہے، اس لیے مجھ سے اتنی جلدی جان نہیں چھوٹنے والی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماما پریشان ہوگی، اس لیے ہمیشہ ہی انہیں یہ کہہ کر ہنسا دیتی تھی، اور اب بھی وہ ہنستی۔ انہیں دیکھتی بڑی ماما اور رمل بھی ہنستی۔ نوٹنکی۔ رمل نے اس کے کان کھینچے۔ آئی اپی چھوڑیں یار، میں بچی تھوڑی ہوں۔ اوکے ماما، میں جا رہی ہوں، شام تک آؤں گی، بائے بائے۔ گاڑی کے ہارن پر وہ جلدی سے بھاگی۔ پیچھے وہ تینوں اسے دیکھتی آسودگی سے مسکرا دی۔ نہ جانے کیا ہوگا میری مہر کا، کب ان کا دل پگھلے گا اس معصوم کے لیے۔ عائشہ بیگم آغا جان کے کمرے کو دیکھتی سوچ رہی تھی، نہ جانے اس بار کیا لکھا تھا قسمت میں، کیا اس کا نصیب بھی اس کے جیسا ہوگا؟ وہ سوچتا نفی کرتی گہری سانس بھر گئی، آگے کی تو بس رب جانے۔ ہاں، کہاں ہے وہ؟ اس نے احمد سے پوچھا۔ نیچے بیسمنٹ میں۔ وہ سر ہلاتا بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، وہ روشنی صرف اس کرسی پر بندھے اس آدمی پر پڑ رہی تھی۔ کسی کے قدموں کی آہٹ سنتے اس نے پھڑپڑانا شروع کر دیا۔ وہ کل سے یہاں بندھا ہوا تھا، بھوکا پیاسا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کیوں لایا گیا ہے، لیکن پھر بھی اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ جگہ بہت عجیب تھی۔ اس جگہ سے عجیب سے سمیل آ رہی تھی، جیسے خون کی۔ آس پاس کی جگہ پر اندھیرا، صرف اس کی کرسی کے اوپر ایک بلب لگایا ہوا تھا۔ کوئی اس کے سامنے آ کر دوسری کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس سے جھکے سر کو اٹھایا۔ وہ اس آدمی کو نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی اسے اس سے وحشت سی ہو رہی تھی۔ بندھے ہاتھوں کی وجہ سے وہ جھٹپٹا بھی نہیں پا رہا تھا۔ غاز نے خاموشی سے اس کو آزاد ہونے کے لیے پھڑپڑاتے دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھیں خاموش سی تھیں۔ زرنور کے کہنے پر اس نے لینس لگانے چھوڑ دیے تھے کہ اس کی بیوی کو اس کی بھوری آنکھیں ہی پسند تھیں۔ اس کی بھوری آنکھوں میں انتہا کا غصہ، وحشت اور سرد پن تھا۔ آصف نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن منہ پر لگی ٹیپ سے وہ کچھ کہہ بھی نہ پایا۔ اچانک ہوتے حملے پر اس کی چیخ نکلی تو غازی نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ میں تم لوگوں کو جانتا بھی نہیں، مجھے جانے دو، میرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ گردن پر چاقو کی نوک محسوس کرتے اس کی زبان کو بریک لگی۔
तुम मेरे लिए फ़ायदे मंद हो, इस हिसाब से मुझे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और मैं पहुंचाऊंगा भी नहीं। अगर तुम मेरे मुताबिक चलो तो क्या करना है मुझे? वो मिनमिनाया। वो सब तो बात की बात है। ठीक है, मैं करूँगा, लेकिन मुझे ऐसे कैद करके क्यों रखा है? चलो, ये तो हो गई हमारी बात। तुमने मेरी बात मान ली, मुझे खुशी हुई। इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ हिसाब चुकाने हैं। कैसे हिसाब? मुझे तुम्हारे ये हाथ चाहिए जिनसे तुमने मेरी बीवी को छुआ था, ये जुबान काटनी है जिससे तुमने उसका नाम लिया, और ये आंखें नोचनी है जिससे तुमने उसे देखने की गलती की। तुम्हारा ये दिमाग उड़ाना है जिससे तुमने उसके बारे में सोचा। वो बहुत आहिस्ता से बोल रहा था। इस खामोशी में उसकी आहिस्ता मगर बर्फ जैसी सर्द आवाज ने आसिफ के अंदर खौफ पैदा कर दिया था। कौन? किसकी बात कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। गाजी ने उसकी तरफ देखा। अब तक कितनी लड़कियों के साथ ऐसी घटिया हरकतें कर चुके हो? नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो तुम्हारी बीवी को जानता नहीं। वो मिनमिनाया तो गाजी ने हनकारा भरा। चलो, तुम्हें एक हिंट देता हूँ। जिसके साथ घटिया हरकत करने के बारे में सोच रहे थे वो तुम्हें भाई कहती थी। कहते साथ गाजी ने उसके दाएं हाथ पर चाकू मारा था। आह! वो चिल्लाया। उसके दिमाग में सेकंड से पहले जरनूर आई थी, लेकिन हाथ में होते दर्द से वो बोल नहीं पाया। याद आया। गाजी ने उसके हाथ में गाड़ी उस चाकू पर जोर बढ़ाया तो वह तड़प कर चीखने लगा। उस आसिफ किसी पागल जानवर की तरह चीखने लगा। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू थे, जबकि वह बर्दाश्त न करते होशो हवास से बेगाना हो गया। गाजी, जिसे उसकी चीखों से सुकून मिल रहा था, उसके बेहोश होने पर बदमजा होते वो पीछे हुआ। हाथ साफ करते अहमद को डॉक्टर बुलाने का कहा और खुद ऊपर कमरे की तरफ चल दिया। मुझे समझ नहीं है, चोट देकर खुद मरहम भी लगा रहे हैं। डॉक्टर के जाने के बाद अहमद उसके पास आया। उससे पूछा तो गाज ने उसे साइड स्माइल दी। इससे उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल वाज़ेह हुए थे। तो नहीं समझेगा, दर्द देकर फिर खुद ही मरहम लगाना और फिर से उसी जगह दर्द देने में क्या सुकून मिलता है। अजीब पागल था वो। उसे लोगों को दर्द देकर मरहम भी खुद लगाना होता था और फिर से उसी जगह दर्द देकर उसे मज़ा मिलता था। खैर, जो मैंने तुमसे कहा था तुमने किया? हाँ, तैयारी पूरी है। मेरी पूरी टीम तैयार है। बस एक कारीवार और शहबाज का नामो निशान ख़त्म। यकीनन किंग ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शहबाज उसका खास आदमी है। वह ज़रूर झटपटाएगा और कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा। गाजी ने बस सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। गाजी, तूने अच्छी तरह सोच लिया ना कि तू ये करेगा? पहले की बात अलग थी, अब तुझसे किसी और की भी जिंदगी जुड़ी है। यही मेरी जिंदगी का मकसद था अहमद, भूला मत। हाँ, तब मेरे साथ सर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। अगर पहले कदम में फतह हमारी हुई तो मैं अपनी जर के पास लौट आऊंगा। नहीं तो अहमद उसे चुप देखकर बोला। नहीं तो उसे गास को एक बुरा ख्वाब समझकर भुलाना होगा। इसे होश आए तो खाने में सुर्ख मिर्चें और पीने के लिए उबलता हुआ पानी दे देना। उसे ऑर्डर देता, उसके सुने बगैर ही वो वहां से चला गया। अहमद ने नफी में सर हिलाया। वो चाहे अब जितना भी नजरें चुरा ले, लेकिन हकीकत ये थी कि अब वो डर रहा था जरनूर से जुदा होने से, क्योंकि मौत से तो उसे पहले भी कभी डर न लगा। ये डर सिर्फ और सिर्फ उस नाजुक वजूद से जुदाई का था। गहरी सांस भरते वो आने वाले वक्त में खैर की दुआ करता गाज के पीछे ही निकला था। क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो? देखिए दानी आपी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उस दिन उमर के साथ जो हादसा हुआ, इस जगह करीबन 20 लोग मौजूद थे, लेकिन उन लोगों में से कोई एक भी उनकी मदद को ना आया। मैं सिर्फ उन लोगों को सजा दिलवाना चाहती हूँ कि ऐसे बेहिस लोग हैं। वो चाहते तो मिलकर उमर की बीवी को बचा सकते थे, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं बोला। वहाँ आसपास के सीसीटीवी फुटेज से भी हमें सब लोग साफ नजर आ रहे हैं। ये लोग इस मार्केट के आसपास के इलाकों के हैं और मैं जानती हूँ आप दोनों के लिए पता करवाना मुश्किल नहीं। मैं नहीं चाहती कोई और लड़की सलमा बने या फिर कोई और लड़का उमर बने। प्लीज सहन भाई। और ये जो जानवर है इसे भी आप देख चुके हैं, सबूत हमारे सामने है। यकीनन इससे ये सब कुछ खुलेआम इसलिए किया है क्योंकि लोग उससे डरते हैं और वहाँ की पुलिस उसकी जेब में है। एन ठीक कह रही है। आज ये लोग इबरत का निशाना बनेंगे तो कल को दूसरे लोगों में कोई इंसानियत पैदा होगी और वहाँ की पुलिस को अपन देख लेगा। तो फिक्र मत कर, अपन ये जानवर 2 दिन में तेरे कदमों में ला देगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू दानीन आपी, मेंशन नॉट गुड़िया। ओके, फिर मैं चलती हूँ, घर पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। वो लोग सुबह ही मरी से लौटे थे और उसने आते ही उमर के बारे में दानीन और जैन को सब कुछ बता दिया था। अब वो मुतमिन थी, जानती थी वो दोनों सब संभाल लेंगे। अब उसका इरादा हॉस्पिटल जाने का था। डॉक्टर बासित ने उसे कुछ अहम बताना था। रास्ते में उसे फ्लावर्स की शॉप नजर आई तो ईशा के लिए लेने का सोचते उसे गाड़ी रोक दी। गाड़ी साइड पे पार्क करते उसने दुपट्टा अच्छे से सर पर फैलाया।
वहाँ पर किसी औरत ने खुली जगह पर रंग बिरंगे फूल रखे हुए थे। वो तो बचपन से ही फूलों की दीवानी थी। वो उस औरत की तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे ये रेड वाले फूल चाहिए। जी। वो फूल इकट्ठे करने लगी। ये लें। उस औरत ने जैसे ही वो बुके उसकी तरफ बढ़ाया, किसी ने रास्ते में ही थाम लिया। ऐना ने माथे पर बल डाले पीछे देखा। कोई लड़का था, शायद किसी का गार्ड। उसकी यूनिफॉर्म से उसे लगा, ये मैंने लिए हैं, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे फूल पकड़ने की? उससे वो फूल उसके हाथ से छीने। देखिए मैम, ये फूल हमारे सर को पसंद आए, इसलिए आप कोई और ले लें। ऐसे कैसे कोई और ले लूं? ये पहले मैंने लिए हैं, अपने सर से बोलो वो कोई और ले ले। मैम प्लीज, हम आपके फूलों की भी पेमेंट कर देंगे। शट अप, बहुत कोई टॉप चीज हो तुम जो कुछ भी खरीद सकते हो। ये फूल मैंने लिए हैं तो मैं ही लूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे लेते हैं तुम्हारे सर ये फूल। वो औरत परेशानी से उन्हें देख रही थी। ये थोड़ी सुनसान सी जगह थी, इसलिए लोग ज्यादा नहीं थे। जो एक दो थे वो अपने कामों में लगे थे। वो फूलों के पैसे उस औरत को देती मुड़ी तो वो उसके सामने आ गया। देखिए मैम प्लीज, सर को जो चीज पसंद आ जाए फिर वो उन्हीं की होती है। आप कोई और फूल ले लें, फूल ही तो हैं। एग्जैक्टली, फूल ही तो हैं। कहाँ है तुम्हारे सर? मैं खुद देख लेती हूँ। बहुत कोई बीस्ट की औलाद है जो उसका कहा नहीं टाल सकते। वो बड़बड़ाती आगे बढ़ी। हेलो मिस्टर, उसने उस आदमी को मुखातिब किया जो उसकी तरफ से रुख मोड़े फोन पर बात कर रहा था। ऐना की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे उसके दिल की सुन ली गई हो। वो सांस तक रोक गया। उसे देखकर एक पल के लिए ऐना ठटकी कि आंखें, ओशन ब्लू आंखें कहीं देखी हैं उसने, लेकिन उसने सर झटका। देखिए मिस्टर, आपका ये गार्ड मेरे कान खा रहा है कब से। ये फूल पहले मैंने लिए हैं, सब मेरे हुए। आप कोई और फूल ले लें। मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहती, इसलिए अपने इस गार्ड को बोले मेरा रास्ता छोड़ दे। और वो रुकी। उसकी आंखें खुद पर साकत पाकर उसके माथे पर बल पड़े, जहरीली नजरों वाला। वो बड़बड़ाई, अपने उस गार्ड को हटाइए, मुझे देर हो रही है। और उसने उसकी तरफ इशारा किया जो उसकी गाड़ी के पास खड़ा था। अमन ने उस पर नजरें टिकाए, हाथ से अपने गार्ड को इशारा किया। वो साइड हो गया। बहुत शुक्रिया, लेकिन ये याद रखिए हमारी नज़र रास्ते में हर चीज़ पर पड़ती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जिस पर नज़र पड़ जाए वो आपकी मलकियत हो जाए। जो आप कहें आपको वही मिलेगा। जबरदस्ती ये छीनने से भी वो आपका नहीं हो सकता। वो कहती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी थी, जबकि अब तक वो स्टिल खड़ा था। वो जितना अपने सहन से झटकने की कोशिश करता उतना ही वो उसके करीब आ रही थी। न जाने कैसी कशिश थी उसमें। हर बार जब भी वो सामने आती उसके दिलो दिमाग जैसे सिर्फ उसी पर अटक जाता, आसपास का होश ही नहीं रहता। सर, सर, उसके आदमी ने उसे बुलाया। उसे होश ही नहीं था कि वो तो कब की वहां से जा चुकी थी, लेकिन वो अब तक उस रास्ते पर नजरें टिकाए खड़ा था। अपने गार्ड की आवाज़ पर जैसे होश में आया, उससे गायब दिमागी से उसे देखा, फिर झटके से मुड़ा जैसे होश आया हो। बेबसी से उसने गाड़ी के बोनट पर हाथ मारा। क्यों हर बार वो मुझे जैसे पैरालाइज कर देती है? क्यों मेरी नजरें, मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहता? उसके चेहरे पर मास्क की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई थी। अमन ने मास्क उतारे, दूर फेंका और गहरे सांस लेने लगा। वो जैसे कब की सांस रोके हुए था। मुसलसल बजते फोन की आवाज़ पर उसने कहर बरसाती नजरों से फोन ऊपर करते देखा, लेकिन नाम देकर वो सीधा हुआ। गहरी सांस भरते अपनी हालत दुरुस्त की और कॉल पिक करते कान से लगाया। हमेशा की तरह उनके सलाम पर वह खामोश रहा। मैं आ रहा हूँ, धीमे लहजे में कहते उसने फ़ोन रखा। गार्ड्स को इशारा करता वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी उसके महल की तरफ रवां दवां थी और उसकी गाड़ी के आगे और पीछे गार्ड्स की गाड़ियाँ थीं, उसकी हिफाजत के लिए रवां थी। रास्ते में उसने एक जगह रुकते सुर्ख गुलाबों का बुके लिया था। गाड़ी एक झटके से अपनी मंजिल पर रुकी थी। गार्ड जल्दी से उतरते उसकी तरफ का दरवाज़ा खोले, सर झुका के वो कोट के बटन खोलता उतरा था। बुके हाथ में लिए वो एक शान से अपने महल में दाखिल हुआ। अंदर आते हमेशा की तरह खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। उसने खामोशी से कदम उनके कमरे की जानिब बढ़ाए थे। आहिस्ता से दरवाज़ा नॉक करते वो अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ नजरें दौड़ाईं तो रॉकिंग चेयर पर किसी वजूद का गुमान करते वो आगे बढ़ा। हौले से कदम उठाता वो मुकाबिल के कदमों में बैठा था, कुछ भी कहे बगैर उसके गोद में सर रख दिया। वो किताब का मुतालिया करते गहरी सोच में गुम थी जब वो हमेशा की तरह उनके कदमों में बैठते उनकी गोद में सर रख चुका था। किताब रखते उन्होंने उसके बालों में उंगलियां चलाईं। अमन, उन्होंने मोहब्बत से मुखातिब किया। एक वही तो थी जो उसे इस नाम से मुखातिब करती थी। कैसा है मेरा शहजादा? नरम लहजे में पूछा गया। अभी नहीं थका, वही जवाब आया। चेहरा ऊपर करते उसने अकीदत से उनके हाथों पर बोसा दिया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपकी तबीयत खराब है? वो मुस्कुराई। हल्का सा बुखार था, ठीक हो गया। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। कैसे ना फिक्र करूं? दुनिया में एक वाहिद आप ही तो हैं मेरे पास जो सब कुछ जानते मुझसे प्यार करती हैं। मैं आपको नहीं खो सकता भाभी माँ। उसके तर्ज मुखातिब पे उनके मुस्कुराते होंठ साकित हुए। आहिस्ता से अपने हाथ उसके हाथ से निकालते वो उठ गई।
आई एम सॉरी आपी, मैं फिर से भूल गया, बचपन से आदत है तो। वो बात अधूरी छोड़ते होंठ काटने लगा। कोई बात नहीं अमन, लेकिन गुजरते वक्त के साथ कुछ आदतें भी बदल लेनी चाहिए। वो रिश्ते में उसकी पुप्पो की बेटी थी। पुप्पो की वफात की वजह से वो बचपन से ही उनके साथ रहती थी। अमन 4 साल का था और वो 16 साल की जब वो उनके घर आई थी। फिर जब वो 18 की हुई तो उसकी शादी समान अमन का सौतेला भाई, जो जुर्म की दुनिया में किंग के नाम से जाना जाता है, उससे हो गई। नूरीन बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी। उसकी इस खूबसूरती ने किंग की हवस को बढ़ा दिया। वो दिन रात उसे रोनता था। निकाह के नाम पर अपनी हवस पूरी की थी, लेकिन जब वो काली दुनिया में जाने लगा तो मगरबी खूबसूरती ने किंग का दिल नूरीन से भर दिया। वो रात को शराब के नशे में धुत उसे मारता पीटता, लेकिन वो चुपचाप मार खाती रहती। अमन बहुत छोटा था। नूरीन ने किसी माँ की तरह उसकी परवरिश की थी। वो जब उससे उसके चेहरे पर पड़े निशानों और जमान की हालत की वजह पूछता तो वो उसे किसी तरह बहला देती, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसे समझ आने लगा। लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। उसे याद था जब वो 15 साल का था, उससे जमान को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे बुरी तरह से धोंक दिया था। जमान नूरीन को हर वक्त के ताने देता कि वो उसे एक वारिस भी नहीं दे सकी, जबकि डॉक्टर ने उसे ये बात साफ बता दी थी कि कमी उसमें नहीं जमान में है। लेकिन जमान ये बात किसी सूरत मानने को तैयार न था। जमान ने जब अमन को अपनी दुनिया में ले जाना शुरू किया तो पहले तो वो डर से चला जाता, लेकिन वह बढ़ती उम्र के साथ वो बाकी होता गया। जमान के सामने डट जाता कि जाने से साफ मना कर दिया। नूरीन जमान की मिन्नतें करती कि उसे इन सब से दूर रखें, लेकिन वो उसकी किसी बात का असर न लेता। नूरीन की हालत को देखते अमन ने जमान के सामने शर्त रखी कि अगर वो नूरीन को तलाक दे देगा तो अमन उसके लिए काम करेगा जो वो कहेगा, क्योंकि फिलहाल वो इतना ताकतवर नहीं था कि नूरीन को उस जानवर से छुड़वा पाता। जमान ने उसकी शर्त मानते उसे तलाक दे दी और उससे अमन के दिल में लोगों के लिए बचपन से जहर भरना शुरू कर दिया था। जिस हादसे ने उसे यतीम कर दिया, उस हादसे को अपने तरीके से पेश करते और दूसरा अपनी शर्त को रखते उसने अमन को इटली का बेताज बादशाह बना दिया। नूरीन को उसने अपने साथ अलग घर में रखा था। वो बचपन से ही उसे भाभी माँ कहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कभी उसके मुंह से निकल जाता। नूरीन ने उसे बहुत कहा ये सब छोड़ दे, लेकिन वो कहता था जिस दिन उसे कोई ठोस वजह मिल गई वो छोड़ देगा। आखिरकार उसने कहना छोड़ दिया, लेकिन वह खुद एक सादा जिंदगी गुजार रही थी। अपने कर्बनाक माजी को भूलकर अपनी जख्मी रूह को खुदा के साथ जोड़ दिया और आज वो एक लेक्चरार थी। बढ़ती उम्र ने भी उसकी खूबसूरती को कम नहीं किया था। आज भी वो कोई 20 साल की लड़की लगती थी। दुनिया में एक वाहिद औरत थी जिसका एहतराम अमन पर फर्ज था। वो कभी उसके सामने नजरें उठाकर बात नहीं करता था। देखने वालों को वो दोनों बहन भाई ही लगते थे, क्योंकि दोनों की आंखों का रंग सेम था, ओशन ब्लू, समंदर जैसी आंखें। नूरीन कभी कभार ये कहकर बहुत हंसती थी, लेकिन अमन सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तेफा करता था। कहाँ खो गई? उसे गहरी सोच में गुम देख वो पूछ बैठा तो उसने नफी में सर हिलाया और फूल देकर मुस्कुराई। वह जब भी उससे मिलने आता उसके लिए फूल लाजमी लाता। हफ्ते में एक दिन वो नूरीन के साथ ही गुजारता था। कुछ खिलाएंगी? नहीं, भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं, मैंने सब चीजें तुम्हारी पसंद की बनाई, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। तुम खोए खोए से लग रहे हो, क्या कोई बात हुई है? खाने के दौरान उसे मुसलसल चुप देख वो पूछ बैठी तो अमन ने अचानक उनकी बात सुनी, फिर नफी में सर हिला दिया। वो उसे गहरी नजरों से देख रही थी। वो उससे कुछ डिस्टर्ब लगा था, लेकिन वो जानती थी काम के अलावा अगर कोई बात हुई तो वो उसे खुद ही बता देगा, इसलिए मुतमिन हो गई। माजी, अब बस भी कर दे, तेरे ऐसे इधर उधर चक्कर लगाने से सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। अनुषा ने कहा तो मेहर ने उसे घूरा। वो जल्दी से मुंह पर उंगली रख गई। यस। तभी आलम की पुरजोश आवाज गूंजी तो मेहर ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा और बेड पर पड़ा तकिया उठाते खींच कर उसे मारा था। तेरे जैसे दोस्तों के होते हुए मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है? आलम का खुला मुंह देखकर अनुषा की हंसी छूट गई। वो तीनों बचपन के दोस्त थे। चूंकि आलम मेहर का पड़ोसी भी था, इसलिए उनके घर भी आता जाता रहता था। अनुषा लोगों का घर भी वहीं था, एक साइड पर अनुषा और दूसरी साइड पर आलम, जबकि दरमियान में महल लोगों का बंगला था। लेकिन अनुषा के फादर ने घर रेनोवेट करवाना था, इसलिए वो लोग दूसरे घर में रह रहे थे, बस कुछ दिनों के लिए। तीनों की फैमिलीज में भी अच्छी खासी दोस्ती थी। अनुषा भी इकलौती औलाद थी और आलम भी। अनुषा और महर को एक भाई, जबकि आलम को 2 बहनें मिल गई थी जो उसे जान से प्यारी थी। आलम उन दोनों से 3 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी वो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर थे।
तुम्हें यहाँ गेम्स खेलने की पड़ी है ना? तुझ में कोई गैरत है कि नहीं? इस प्रोफेसर की वजह से मुझे इतनी डांट पड़ी है आगा जान से, बजाय इसके कि मुझे कोई हल दो ताकि उस प्रोफेसर से बदला ले सके। यहाँ तुम मजे से ठूंसे जा रही हो या गेम्स खेल रहे हो? वो मुंह फुलाती बैठ गई। उसके एक तरफ आलम जबकि दूसरी तरफ अनुष्या थी। यार मेहर, कौन सा तुझे पहली बार डांट पड़ी है? तेरे आगा जान को तो तेरे से न जाने कौन से जन्म का बैर है। तो मुझे बता, तेरी किस बात पे उन्हें इतराज नहीं है? आलम ने कहा तो मेहर का चेहरा उतर सा गया। मुझे खुद समझ नहीं आती, पता नहीं आगा जान क्यों मुझसे ऐसे रवैया रखते हैं, जबकि रमल आपी से तो वो बहुत प्यार करते हैं। उसकी आवाज में हसरत सी थी। आली और अनु ने एक दूसरे को देखा। उनकी मेहर उदास थी और भला वो उसे उदास देख सकते थे। तभी उसे आंख से इशारा करते आलम बोला, मेहर मैं क्या कह रहा था? क्या? वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। देख, तेरे जो आगा जान है ना, पूरे हिटलर के जानशीन है। मैं बता रहा हूँ, जो वो तेरे साथ करते हैं ना, जिस दिन मेरी गैरत जा गई ना, उस दिन। मेहर ने उसे घूरा। उस दिन उसे आईब्रुज काटे का, उस दिन वो एक कदम पीछे हुआ। नहीं बता ना, गैरत जा गई तो क्या करेगा? हाँ, वो अब बाकायदा उसके पीछे भाग रही थी। उस दिन कुछ भी नहीं, जो होता है वही होगा। अब भला मैं आगा जान को क्या कह सकता हूँ? आलम तुम एक नंबर के फजूल इंसान हो। मेहर ने उसे कुशन मारा, जबकि अनुषा ने सर पीटा। बस करो, पिछली बार भी तुम दोनों ने मेरे रूम का नक्शा बिगाड़ दिया था। रखो दोनों ये कुशन। वो दोनों शराफत से आकर बैठ गए। अरे यार, टेंशन क्यों लेती है आलम के होते हुए? टेंशन लेने का नहीं, देने का। तो फिक्र मत कर, उस प्रोफेसर को सबक सिखाएंगे ही। बिल्कुल। जब हम लोग सॉरी कर आए थे तो क्या जरूरत है उन्हें शिकायत लगाने की? अनुषा ने भी हिस्सा डाला। अच्छा सुन, आलम बोला। क्या? मेहर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अगर हिटलर ज्यादा तंग करे तो उठवा लें। आलम, वो चीखी तो उसने शराफत से नफी में सर हिलाया। मैं सोच रही हूँ, उठवा ही लेते हैं। थोड़ी देर बाद मेहर संजीदगी से बोली तो तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते खिलखिलाकर हंस दिए, जबकि नीचे लाउंज में बैठी नशीन की मामा ने सर पर हाथ मारा। उफ, इनका कुछ नहीं हो सकता। अनुषा और मेहर मेडिकल, जबकि आलम बिजनेस पढ़ रहा था। वो घर आई तो घर में खामोशी देख थटकी। मामा, मामा। उन्हें आवाज देती वो उनके रूम में आई तो उन्हें किसी गहरी सोच में गुम देख उनके पास आई। क्या हुआ मामा, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? और बड़ी मामा और अमल अपी कहाँ हैं? उन्होंने गहरी सांस भरी। वो बाजार गई हैं। ओके, वो सर हिला गई। मामा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दें? तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई है। सच्ची? हाँ। उन्होंने सर हिलाया। आई लव यू मामा। वो उनसे चिपकी। आप जाओ, मुंह हाथ धो लो। मेहर, वो जाते हुए रुकी। किसके साथ आई हो? आलम के साथ। उन्होंने समझकर सर हिलाया। अच्छा सुनो, इधर आओ। जी मामा। वो उनके पास बैठी। मेहर, तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। मुझे पता है मेरी मेहर कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकती, लेकिन बच्चे, आपके आगा जान को बहुत शर्मिंदगी हुई होगी जब उनके दोस्त ने उन्हें बताया होगा। देखो बच्चे, मुझे पता है कॉलेज में ये सब चलता है, बच्चे ऐसे शरारतें करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन तक होनी चाहिए। बड़ों तक बात पहुंचे तो बात बढ़ जाती है। आपके आगा जान भी हर्ट हुए हैं। बेटा, उनका जाना पहचाना नाम है, हजारों दुश्मन है। हम नहीं चाहते कि कल को फिर से आकर कोई बोले कि आपकी बेटी ने ये किया, इसलिए आइंदा ध्यान से, और इससे पहले कि आगा जान आपसे मजीद बदगुमान हो, उनसे सॉरी करो। वो चुपचाप सुनती रही और सर हिलाकर उठ गई। रूम में आकर फ्रेश हुई। अब उसका रुख जुल्फकार शाह के कमरे की तरफ था। हल्का सा दरवाजा नॉक किया। इजाजत मिलने पर वो अंदर आ गई। वो अपनी चेयर पर बैठे किताब के मुताले में गुम थे। वो कुछ देर उन्हें देखती रही। खामोशी पर उन्होंने सर उठाकर देखा। उसे देखकर उनके तासुरात सख्त हुए थे, जिन्हें उसने शिद्दत से महसूस किया था। कहो, क्या बात है? वो सख्त लहजे में बोले। मेहर का दिल दुखा, लेकिन वो उस लहजे की आदी थी। वो आगे बढ़ी और आहिस्ता से उनके कदमों में बैठ गई। आगा जान को धचका लगा। वो भी तो ऐसे ही करती थी। हमेशा उन्हें मनाने के लिए उन्होंने मेहर के चेहरे की तरफ देखा। हो बहू वही नैन नक्श, वही चेहरा, जरा सा फर्क नहीं था। आज अगर उन दोनों को साथ खड़ा कर देते तो पहचानना मुश्किल होता। आगा जान, वो आहिस्ता से बोली। उसकी आवाज़ उन्हें माजी से खींच लाई तो उन्होंने उसके चेहरे से नजरें हटा ली। वो कभी भी उसका चेहरा नहीं देखते थे। गलती से अगर नजर आ जाए तो रुख मोड़ लेते। वैसे तो वो उससे भी कभी बात नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई बहुत ज़रूरी हो तो बात करते वक्त भी उनकी नज़रों का रुख किसी और तरफ होता। आगा जान, मैं मानती हूँ बहुत तंग करती हूँ सबको, लेकिन मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता था वो हमारे प्रोफेसर हैं, और हमने बाद में उनसे सॉरी भी किया था। उन्होंने हमें माफ़ कर दिया। इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बन की। फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी, कभी भी आपको शिकायत का मौका ना मिले। वो ठहर ठहर कर बोलती। उन्हें बिल्कुल उसका अक्स लगी। इससे पहले कि वो उसके सर पर हाथ रखते, उनके कानों में वो आवाज़ें गूंजने लगीं। आंखों के सामने कई मंजर घूम के अपना हाथ पीछे करते वो तेजी से उठे थे कि उनके कदमों में बैठी मेहर को ठोकर लगी। वो मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। मेहर,
کمرے کے دروازے پر وہ منظر دیکھتے سب حیران تھے۔ حسن صاحب جلدی سے آگے بڑھے۔ مہر بابا کی جان۔ انہوں نے اسے سیدھا کرتے اپنی مہربان آغوش میں لیا، جبکہ وہ بالکل ساکت سی بے یقینی سے آقا جان کو دیکھ رہی تھی، جو خود بھی اس سچویشن پر گھبرا گئے تھے۔ یہ عمل ان سے بے اختیاری میں ہوا تھا۔ حسن صاحب نے اسے تھام کر کھڑا کیا۔ آپ کو اپنی پوتی سے جو بھی اختلاف ہے بابا جان، لیکن میں ہرگز اپنی بیٹی کے وجود کی تذلیل برداشت نہیں کروں گا۔ وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولے، جب وہ تیزی سے ان کا حصار توڑتی اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی بابا جان جتنی آپ نے بنا دی، پھر بھی وہ آپ سے معافی مانگنے آئی تھی۔ آپ نے اپنی نفرت اور ضد میں اپنی بیٹی کو مار دیا، اب میری بیٹی کو جیتے جی مار دیں گے؟ عائشہ آج پہلی بار ان کے سامنے بولی، آپ نے اچھا نہیں کیا بابا جان۔ حسان شاہ بھی بولے تھے، جبکہ عالیہ بیگم عائشہ کو سنبھال رہی تھی۔ رمل چپ کھڑی تھی، اسے آقا جان سے ایسی امید نہیں تھی۔ سب انہیں شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتے چلے گئے، جبکہ وہ خود بھی بے یقین تھے۔ ذرا سی بات کو انہوں نے اپنی انا میں کتنی بڑا بنا دیا تھا۔ انہیں پھر سے ملال نے آن گھیرا، شاید یہ پچھتاوا ساری زندگی کے لیے ان کے ساتھ رہنا تھا، لیکن وہ تو اسے معاف کر چکے تھے نا۔ اس کی جوان لاش کو دیکھتے وہ کیسے اس سے اٹھ جانے کی منتیں کر رہے تھے، لیکن پھر وہ مہر کو کس چیز کی سزا دے رہے تھے وہ خود بھی سمجھ نہیں پائے۔ پچھتاوے کے ناگ انہیں ڈسنے لگے تھے۔ وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ بیڈ پر ڈھہ گئے۔ تم کیا گئی؟ غموں نے جیسے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ وہ دل میں اس سے مخاطب تھے۔ ماضی کو سوچتے انہوں نے آنکھیں موند لیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے ان کی اس قدم نے مہر کے دل میں بچی ان کی محبت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، جس پر انہیں زندگی بھر پچھتانا تھا۔ جاری ہے۔